Assalamu alaikum. Thank you all for joining in Plan 9 live session. Today we'll be talking about the startups versus the pandemic. In our panelist, we have the Honorable Dr. Hasnan Saab. Dr. Hasnan works as an advisor to the Ministry of Industries, PITAC, CPEC, etc. He also heads the National Development Cell for Startups. Right next to him, we have Siratif Mumtaz. Siratif Mumtaz is joining us from abroad. He has been working, he's the former director of entrepreneurship wing at PITB. And he has also worked with us and with UN and very different periods of the projects. Moreover, we have our very own Mr. Salman Saab here. Salman Saab has also worked in World Call, from food, basically in telcos, each and everything I can name, around 10 industries as a whole. So we have a lot of experience in the panel. And thank you all of the panel for taking out of the time and coming here. Thank you so much, guys, for being part of the discussion. Thank you. Praise God. Okay, we will formally begin the sessions. There are a few questions that we have received by the past participants, and there are going to be a few questions we'll get along the way. So we are going to start with basically the session is going to be about startups and the pandemic. What can startups do during the pandemic? What is going to be the post-pandemic scenario for them? How many startups are going to survive this? How, and etc. So I'll start with Dr. Snan. Sir, if you can please tell us about, as the pandemic of COVID-19 has hit the world in general, in Pakistan in specific. So we are mostly going to focus on the startups that are in our ecosystem in our country. So how many startups in our country would be part of the collateral damage to it? Like, what percentage of startups you think would get affected and what extent they going to get affected due to the pandemic? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Initially, I would like to congratulate first Plan 9. I mean, the beautiful efforts, the wonderful efforts, indeed fabulous. And I would like to extend my thanks to your a Tiger Plan 9 champion, Faisal, to engage me, and he illuminated me about all the Plan 9 scheme and how many startups you have been started so far, and you're active tigers, because obviously Prime Minister says the youth is the tiger, so all the tigers are on the rock. And the Plan 9 in this era, it actually tells the nation that any disaster can manage. Every error is opportunity. So you people have managed so well. So coming to the answer, after extending my wonderful warming thanks to you people, because I have been like around thousands and hundreds of seminars and conference, but I never happy like the way I am today, because Plan 9 from Pakistan is working like international mechanism. So, well, answering to the question, COVID-19 has affected. So global funding companies have titled coronavirus. I have written so many articles on this in Nation, Daily Times, Dawn. I'll share a few of the links here, and my many books are there. An upcoming book is about the White Manifesto, where I have mentioned the next coming word is the word of digitization. So number one, if you take it as a story, for example, if somebody says it is crafted story that somebody is behind the scene and they wanted to create some mess out of it, and they wanted to convert the whole word into digitization, and they have planted the virus, okay, take this option. Second option is, yes, the next word is the 5G, Internet of Things, another. So how this word plays on, the word of robotic will come. Everything has pros and cons. So obviously from 19th century, there was an institute, and there was industrialization, and automation has been started. Now, so the automation is going on and on and on. But let me introduce few things about this. The global fundraising companies have titled coronavirus the black swan of 2020. One, the latest pandemic is the COVID-19. Is expected to have far-reaching negative impact for Pakistan economy, as the number of people living below the poverty line might get double, going to 125 million from existing figure of 50 to 60 million, while 19 to 20 million were expected to lose their job.
I mean, you don't worry about it, but if Plan 9, if the people is working like Plan 9, then we can come out of it. But surprisingly, these are the figures. So unsurprisingly, the early stage startups are already feeling the pinch. Internet of Things, Pakistan from Karachi raised $150,000 from Indonesian investor a while back with a commitment of up to 500,000 total if the key performance indicator were met. But within the coronavirus, all that seem to have gone through like other way around to the drainage. The situation is perhaps even worse for the later stage startup. Take Bikea, for example, which raised Series of A of 5.7 million last May and was now the process to get its B round. There are plenty of the startups whose industry is counter-cycle to the virus, and they will most probably come out as gainers. A perfect example I would like to give here is this Zoom that we are working on. By the way, this is like they are giving you the addiction, and after that you have to pay $35 for an hour, maybe. I don't know. But obviously, in the coming days, the digitization and whosoever wanted to fill up the gap, they can. Well, the teleconferencing platforms, I mean, at this platform, I just wanted to, I mean, whosoever is listening me, I request you to, for my Pakistani youth, do start and come up with the maximum plan of digitization. Obviously, if you resist to this, word will crush you like anything, because there is an Arabic proverb, the time is like a sword. If you be with it, okay. If you come out of it, they will crush you like anything. Well, this platform, which has been in its market capitalization double as a result of the social distancing and remote working. Locally, some players are hoping for the change of fortune. Take sudden rise of learning management system that the education institution have had to deploy. So we have had more inquiries in the past 2 weeks than in the last 6 months. I would like to take a name of Acuno, a startup providing enterprise resource planning software to school. A second is the very important, obviously, nobody wanted to have, I mean, what to say, in order to, we would, lastly, I have written a poetic verses, Insan Insan ke Qabil nahi raha. So, well, the Y.com PK, one of the largest online businesses, which unsurprisingly has seen the spike in sale after coronavirus, but has been in the space for around 6 years. And other than two, we are looking for the startups in space that might see the behavioral shift. Yes, the behavioral shift is very much important in the post-coronavirus world, such as EdTech and FinTech. So these are the few examples. And the question is specifically and precisely that every error is opportunity. Now, this is the worst condition. Now, just to resist, it is not the case. Now, let's think about the digitization. Thank you. This I hope answer the question. Hopefully, yes. Sir Atif, if you might elaborate a bit, that how much do you think, how much percentage of the startups would get hit by due to the coronavirus COVID, and what is your guess on it? Sir Atif, if you would please tell us. Thank you very much, Sarmat, and thank you PITB for inviting me. So I look at it from a different angle. Being part of the startup world myself for the past 20 years, every crisis is an opportunity for a startup. They should, instead of looking at it as a survival or whether they will survive or not, they need to learn. Every successful startup learns to pivot during this time, and they find their niche where they can be successful. COVID has many opportunities too. It may not be traditional opportunities, but there are opportunities to serve the community and to make a name for themselves. Healthcare industry needs a lot of help. Delivery needs a lot of help. Delivery of every kind of things, not just food or groceries. There's life beyond that. So any startup that can find that niche and can pivot quickly will be the one that will become the next billion-dollar company out of Pakistan. Now, having said that,
if you look at crisis is not one time. I mean, if you go back 20 years, there was dot-com bust. If you go back 12 years, there was an economic meltdown worldwide in 2008. So crises have been hitting us every 8 to 10 years in the past 20 years, and startups have survived and grown out of those crises. So we should look at That's true. positively and that what can we do and pivot up. Thank you. The same question goes to Sir Salman. Can you please tell us about how much of the startups would get affected? What's your take on this? Okay, I think when it comes to entrepreneurship, startups, I think the COVID, there's one thing which fits the bill, is basically someone's nightmare is another one's dream. How much will be affected? Almost everybody's going to be affected by it. Be it the mindset change, be it the financial revenue streams, be it you have your development plan squashed up by COVID. So I see this is the way I see it. I'm an optimistic person. The way I see it, I see the crisis and the chaos is the food for success for the entrepreneurship ecosystem. Reason why? Because you look at Africa, where we saw Africa was in a downturn spiral of economy. We've seen they coming up and hailing the financial mobile financial systems. So the way I believe is this: that everybody is going to get affected. Everyone is being affected and will also be affected by it. However, we've seen that in Pakistan there are certain, not numbers, but the industries that are picking up, and the others which are going down. For example, you take travel, tourism, the booking aggregates. They are going down. At the same time, you talk about the health, you talk about education, and most importantly, you look at the fintech. They are on the rise. So my take is this is going to affect everybody, but it is a time for the startups also to innovate, not pivot much, but they should stick to the ground. Reason why? But at any given point, the things will turn back to the normal. However, just like the Dr. Saab said and Atif said, you should not lose the focus. But at the same time, in order to survive, you need to innovate to go through this thing. Look at, scan the horizon, what opportunities are there which can help you generate more revenue. And who knows, probably after going through this pandemic, you will have more solid revenue streams. And we have seen few startups doing fairly well on this front also. Okay, and just now getting the question out of what you guys said, basically. So it is absolutely clear that everybody is going to be affected, but if they are agile enough and they are good enough, this can also be an opportunity for them as a whole. Now, basically, as you guys have mentioned, that there are few domains that could be hit more than others. Obviously, we are all going to be affected, but certain industries and certain domains are going to be hit more than others. Like as per news of the yesterday, the oil prices have dropped to a record low. They are at a certain level where they never were before. Luckily for startups, then very few startups, or rather little to no startups, were in oil and gas, basically because it's a big boys domain. So what do you guys think, starting with you, Sir Atif, which domains are going to gain out of this, or which domains are going to get affected more? You can answer in any way you like. So can you please repeat the question? Yeah, sure. So basically, that question was that now we had established that everybody is going to be hit, basically, with the pandemic as a whole. So what domain are going to be hit more than others in your aspect? What the startups in working in which specific domains are going to be hit more or less than others? Well, shall I answer? Dr. Hasnan here. Yeah, sure. Please, you can start, and then everybody else can also talk. Please, talk something. Yeah, the few startups, obviously. I mean, we have seen just. I mean, to be on this. Lighter side. In a COVID side, obviously it is restricted. But I just took a run for around 100 kilometers around my town. So I've just seen all the startups, all the restaurants, all the things are closed like anything. So everybody has been hit by the
coronavirus, and obviously delivery mechanism is still not available for so many times. Now this time is like for the cottage industry. Let me put up this point here. You will bear this out for another 1 month. After that, the human nature will not allow you to sit inside. Obviously, hibernation is not more than 40 days. So even this is a natural process. So you hurt the nature. Now this time is by the nature. So nature is hurting you and hitting you like anything, because you people are spitting everywhere. You people are throwing dust everywhere. So now nature is in the little anger. Now, so the point is, you can introduce the button industry, you can introduce the plastic industry and the cotton industry. You have to stay at home, and now you have to figure out which cottage industry you can start. I'm talking about the manufacturing even. Obviously, the selling part be on the tech side. Digitization is the most important, but the supply chain is still the important part. So you cannot, right away, you cannot reject that part that we will not have anything. But for the whole world, the whole supply chain has been distorted and everything. And now you can, this is the tailor to the day of judgment, obviously. This is the complete trailer. You cannot do anything. Your suits are in the wardrobe. You cannot even wear anything. But now the word is only digitization. Whatsoever is being done is through the digitization. You can learn, you can earn, or you can have, so far, just in 18 days, Netflix is saying that we are reaching up to the doubles of the double. All or the Internet of Things, including Netflix, you just name it, whosoever working on the digitization of the things, they are in the, like, it is the same example, like when the energy shortfall in the Pakistan, the generator business become risen up. So same as the case. It was at the boom. Absolutely. Whosoever in the business. So, but the final point is, let's introduce the cottage industry. I repeat again, let's introduce the cottage industry, a one-room process, one-room operations, and what are the pros and cons. And now we have to look forward. And we have to write, and all of the people are learning here and using the social media. We have to discuss with the government what are the policies for the cottage industry, and how can we make those products under the line, obviously 70 products, 80 products, button industry, hanger industry, so on and so forth, whatsoever can be produced in the bulk or in the short form. So this is my suggestion, that manufacturing plus selling on the this thing. Digital not platforms. Only the entertainment, but yes, functionality is still very important part. So we have to think. Okay, so we got okay sir. हमें फीडबैक आ रही है कि हम उर्दू का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और बहुत सारे हमारे सुनने वाले ऐसे हैं जो इंग्लिश पे इतनी कमांड नहीं रखते. तो मेरी आपसे अर्ज होगी कि अगर हम इफ नॉट ओनली उर्दू, हम उर्दू अंग्रेजी के मिक्स में आ जाएं तो ज्यादा ऑडियंस की समझ में आ सकेगी. दैट्स अ रिक्वेस्ट, एंड सरमद प्लीज ट्राई टू इंश्योर कि हम टाइमली इक्वल हर पार्टिसिपेंट को इक्वल टाइम दे सकें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. अच्छा, सो आतिफ साहब, वही क्वेश्चन है बेसिकली सर आपसे भी कि अगर अभी मतलब कौन से डोमेन्स ऐसे हैं जो ज्यादा हिट होंगे इस पैंडेमिक से? कैन यू प्लीज एलैबोरेट सर? शुक्रिया हमाद, आपका उर्दू का कहने का. उर्दू में बात करने का अपना मजा है, तो हम थोड़ी देर की इजाजत मिल गई है तो अब हम बोलेंगे. तो सरमद, आपके सवाल का मैं इस तरह जवाब दूंगा कि तमाम बिजनेसेस इक्वली हिट हुए हैं, चाहे कोई भी बिजनेस हो, मगर इसमें से निकलना पड़ेगा. तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, एक रेस्टोरेंट की जो कि हमारे नेबरहुड में है. अब लोग रेस्टोरेंट्स में खाना खाने नहीं जा रहे क्योंकि रेस्टोरेंट तो बंद हैं. कई मुल्कों में, सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चले जाएं तो रेस्टोरेंट्स बंद हैं. मगर हर रेस्टोरेंट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोसरीज आती हैं, जिसका मतलब है गोश्त आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं, कोक, पेप्सी, 7 अप, चाय, ये चीज़ें उनके यहाँ एज अ स्टॉक हर रोज़ ख़रीदते हैं ताकि वो कंज्यूम हो सके. साथ में कुछ रेस्टोरेंट्स के राइडर्स भी होते हैं जो कि उनको डिलीवर भी करते हैं अगर कोई खाना घर पे मंगवाए. तो व्हाट दिस रेस्टोरेंट हैज स्टार्टेड डूइंग, एंड देयर इसकी छोटी सी चेन है, 3-4 रेस्टोरेंट्स की, इट्स अ पिज़्ज़ा चेन.
तो उन्होंने किया ये है कि पिज़्ज़ा कोई ख़रीद नहीं रहा और रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं, तो उन्होंने अपनी ग्रोसरीज को ऑनलाइन रख दिया है और अपने राइडर्स को कहा है कि, और साथ में फ्लायर्स और ईमेल के ऊपर मार्केटिंग कैंपेन करके उन्होंने कहा है कि भाई किसी को ग्रोसरीज चाहिए, किसी को गोश्त चाहिए, चिकन चाहिए, किसी को सब्जियां चाहिए जो टॉपिंग्स होती हैं, तो वो अवेलेबल हैं, टमाटर प्याज वगैरह हमसे ले लें। तो अब हो ये रहा है कि मुझे अगर ग्रोसरी चाहिए तो मैं उस पिज़्ज़ा वाले को फ़ोन करूंगा, तो इंस्टेड ऑफ पिज़्ज़ा 20 मिनट के आने के, 20 मिनट के बाद मुझे वो ग्रोसरीज डिलीवर हो जाती हैं एंड आई कैन कुक माय ओन फूड। Having said that, this is a great way to pivot from being a restaurant जो सिर्फ और सिर्फ पिछले 20 साल 10 साल से रेस्टोरेंट था, अब वो अपनी रेस्टोरेंट की जगह वो ग्रोसरी में चला गया है। लिमिटेड ग्रोसरीज हैं मगर फिर भी हैं, मगर उससे हुआ ये कि उसकी सप्लाई चेन अभी भी जॉब पे है, यानी कि जहाँ से वो चीज़ें खरीद रहे थे उनको उन्होंने ऑर्डर कैंसिल नहीं किए, राइडर्स को ले ऑफ नहीं किया, राइडर्स भी फूड डिलीवर कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उनकी रेस्टोरेंट की स्पेस यूज़ नहीं हो रही मगर इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें हो रही। सो मेरी नज़र में जो भी अपने आप को इस क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, इवन गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, कि मैं अगर सारी उम्र रेस्टोरेंट चलाया है तो मैं रेस्टोरेंट ही चलाना है, नहीं भाई तुम कुछ और भी कर सकते हो। Whoever can figure that thing out will be successful. Okay, Salman Saab, sir, same question आपसे भी कि in all of these domains that are getting hit, which domains do you think would get hit the most, and others likely who won't be impacted as this much? Again, a lot has been said by Hasnain and Atif. I'll just sum it up. अगर आप बात करें ऐसे बिजनेसेस की जो ब्रिक एंड मॉर्टर में है, यानी कि जो शॉप से रिलेटेड हैं, वो बिजनेस तो सबसे ज्यादा हिट हुआ है। बट आप बात करें स्टार्टअप्स की, तो ऑल दोज हु आर इनटू डिजिटल स्पेस, यस मोमेंटरीली सेटअप है, उनके लिए सेटबैक है, बट एट द सेम टाइम इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू पिवट आल्सो। अब इस वक्त जो दुकानों की टाइमिंग है वो सुबह से लेके शाम 5 बजे तक की है। अब मेरे ब्लॉक के अंदर जो सब्जी वाला है, अब ये इनोवेशन की बात है ना, ही इज जस्ट हार्डली 20 years old, उसने अपनी मैन पावर डबल कर ली है। और उसने डबल क्या किया, उसने लोगों को कहा कि भाई बाइक है तुम्हारे पास, आ जाओ मेरे पास नौकरी के लिए, मैं तुम्हें पैसे भी देता हूँ, तुम डिलीवरी शुरू कर दो। सो हमारे लिए इस वक्त जो एक चीज है वो ये है, जैसा अभी हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि इट्स अ टाइम टू इनोवेट। All those who will innovate, even by a certain degree also, so what they will definitely go through this thing. आतिफ ने एग्जांपल दी बहुत अच्छी, हसनैन साहब ने एग्जांपल दी अपनी। I would say कि जो लोग ब्रिक एंड मोर्टर के अंदर हैं उनके लिए डिलीवरी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ, जो डिजिटल स्पेस में हैं उनके लिए, और जिनकी अभी फॉर एग्जांपल जो अगर हम डिवाइड करें दो हिस्सों में, एक लेयर इंडस्ट्री को इस वक्त बहुत बड़ा सेटबैक है, शॉपिंग हो गई, आपका सिनेमा हो गया, एंटरटेनमेंट हो गई, बट दीज आर मोमेंटरीली, लोगों ने खाना नहीं छोड़ना, तो वो आएंगे इस तरह वापस। एंड वी हैव सीन व्हेनेवर देयर इज अ सेटबैक, वी हैव सीन दिस थिंग कमिंग बैक विद मल्टीप्लायर इफेक्ट आल्सो। बट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट इनसाइड एंड सी कि जिस तरह आतिफ ने कहा कि उनके पास सप्लाईज एक रेस्टोरेंट में आ रही थी, उन्होंने आगे डिलीवरी भी शुरू कर दी, जाहिर है वो और ऑर्डर करेंगे, उन्हें वॉल्यूम बेस के ऊपर कम प्राइस और मिलेगी, उनका रेवेन्यू और बढ़ेगा। डॉक्टर साहब ने अपनी एग्जांपल दी कि स्मॉल बेस जो कॉटेज की बात करें, मैं उसे थोड़ा सा इस तरह कहता हूं कि आपके लिए ये फ्रीलांसर्स के लिए इस वक्त बूम है, तो आप फ्रीलांसिंग को भी देखें। अब आपकी अपनी इनोवेशन पे डिपेंड करता है कि आपके प्राइसिंग प्लान क्या थे। हो सकता है आपके लिए इस वक्त कस्टमर, अगर आप इनटू डिजिटल स्पेस, तो आपके लिए कस्टमर एक्विजिशन का टाइम है। इस वक्त आप सबसे ज्यादा बेसिकली ट्रायल करवा सकते हैं। यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद योर कस्टमर्स ऑल्सो। सो इट्स नॉट कि आप ये कहें कि जी पेंडेमिक है तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी है तो हम तो डूब गए, हम तो रह गए। और ऑनेस्टली अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो स्टार्टअप्स ने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी हिस्टोरिकली जनरेट भी नहीं की। वी आर मिडवे दिस ईयर एंड वी हैव सीन व्हाट few handful of the investment deals. So I think ये जो 6 महीने का टाइम आगे जो हम फोरसी कर रहे हैं सितंबर, और गॉड फॉरबिड अगर दिसंबर तक पाकिस्तान में ये चीज होती है, this is the time to focus on what? Your digital presence, your customer acquisition, your bonding with your existing customers, looking at how you can use your existing resources to expand more and generate more revenue. And the most importantly, this is a time to reflect on your business model also, कि आपका business model में क्या flaws वजह से hit हुए हैं, and then you can sharpen it. And I think when this all will be over to some extent, those who are being innovative or creative
will have a more appetite for the funding rather than those who are just complaining about. हाँ सर, इसी से रिलेटेड एक और मैंने क्वेश्चन पूछना था, वो आई प्लानेड फॉर लेटर ऑन, बट अभी चूंकि डिस्कशन चल रही है एंड इट इज वेरी क्लियर, यहीं पे हम वो बात भी कर लें. वी हैव डिसाइडेड कि ब्लैक एंड वाटर इज गोइंग टू ब्लीड मोर देन द डिजिटल obviously. However, basically पूछना ये था कि अगर इस तरह हो कि there is a certain, किसी भी इकोनॉमी में इन द वर्ल्ड इस तरह होता है कि स्टार्टअप्स का एक इम्पैक्ट होता है ऑन द इकोनॉमी. डॉक्टर हसनैन ने अपनी बुक में भी स्पेशल मेंशन किया हुआ, इट इज गेजेबल एटसेट्रा एटसेट्रा. अब सलमान साहब, कमिंग स्टार्टिंग फ्रॉम यू, व्हाट डू यू थिंक दैट इफेक्ट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द पेंडेमिक, और that amount of that impact on the economy वो कम होगा इस पेंडेमिक की वजह से, उसका जो साइज है बेसिकली? देखिए, आप जितने मर्जी पेंडेमिक देख लें, जितने मर्जी क्राइसिस देख लें, हमने .com का बस बबल होते हुए देखा, और उसके बाद हमने 2008 के क्राइसिस देखे, अब ऑयल के क्राइसिस इस वक्त चल रहे हैं. देखिए, द लाइफ इज गोइंग एट अ फास्ट ट्रैक नाउ. दिस इज द वन इंसिडेंट, many more may come, because life में कोई चीज predictable नहीं होती. Life itself is a very very big variable. So the point is this, it calls for your resilience. अब I think अगर बाटा के स्टोर अभी बंद हैं तो बाटा कैन स्टार्ट द डिलीवरीज तो कभी बंद नहीं होनी, डिलीवरीज खुल जाएंगी और गवर्नमेंट खोलेगी आपकी फूड नॉन फूड अलाइक. आई थिंक ये वो बेहतरीन टाइम है जो मैं ये कहता हूँ कि बिसाइड्स वी हैविंग मोर वर्किंग आवर्स, जो अभी काम करने वाले हैं, इवन के वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी देख लें, दे एंड अप पुटिंग इन लॉट मोर वर्किंग आवर्स. दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर प्लानिंग. This is the best time to see and test your business ideas also. So I think this is the time to reflect more on कि आपके stats क्या हैं. हाँ, पाकिस्तान में एक चीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि रिसर्च बेस्ड स्टैट्स. बट आपको वन वे और अनदर एक सोर्स नहीं तो दूसरे सोर्स से क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं. रिटेल आउटलेट्स कितनी हैं, आपकी एरिया वाइज पॉपुलेशन कितनी है, आपके इस वक्त टीयर ए, टीयर बी, टीयर सी एरियाज कौन से हैं जो डिलीवरी के लिए हैं. And people, good thing is this कि in crisis के अंदर you would have seen कि लोग, people are sharing. Lots of research reports are being generated also. So if you have an appetite to read, learn every day, that is when I go back to the same thing कि being an entrepreneur is hustling for life. So every day you have to spare some time to learn. Every day you would have to reflect on your business model. What are the area of opportunities, where we are going wrong. Okay, fine, even if you want to blame the world, blame the pandemic, fine, but divide your weekdays into this thing कि 2 दिन मैंने पूरी दुनिया को blame करना है, मेरा business डूब गया. अच्छा ठीक है, फिर 2 दिन कि भाई मैं चीज improve क्या कर सकता हूँ, 2 दिन कि भाई मेरे अंदर गलतियां क्या, मैं क्या improve कर सकता हूँ. So by the end of the 1 week, the next week you will start, obviously you will have less complaints and you will have more to do on your list, which you can improve yourself. Obviously, that's very very good. Sir Atif sir, also for you the same question कि Atif sir, the impact that जो startups का impact होता है इकोनॉमी पर, वो आपके ख्याल में उसकी जो मिकदार है वो बढ़ेगी या कम होगी as a result of the pandemic? आप अगर स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें पाकिस्तान की, तो 97% ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स. ओनली 3% इज कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड. अगर आप कंपनियां SECP से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से रजिस्टर्ड देखें, तो अबाउट 700 के लगभग पब्लिकली ट्रेडेड हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज में या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और अबाउट 25,000 एक्टिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां. ये वो कंपनियां जिनको आप बड़ा कह सकते हैं किसी लेवल पे. So it's a very small number. The rest of it is all informal, including tech startups and many others. SECP के estimate के हिसाब से कुछ सालों पहले तक about 300-400 कंपनियां हर साल रजिस्टर होती थी in tech space. I don't know the current statistics for this year, so I can't comment on it. 2018 तक about 10% तक का था. तो इट्स अ बिग नंबर. अगर हम सिर्फ टेक स्टार्टअप की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इट्स अ स्मॉल नंबर, बट इट्स स्टिल अ बिग नंबर फॉर स्टार्टअप्स. अब इसमें से कितनी सक्सीड करेंगी, कितनी फेल होंगी और उसका इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको आप इस तरह भी देखिए कि स्टार्टअप्स में से लेस देन 50%
of the startups survive the first year. ये एक thumb rule है. Obviously, yes, that's true. उसमें से तो without COVID वैसी 50% की जिंदगी खतरे में रहती है हर वक्त. तो इस वजह से ये सवाल बड़ा मुश्किल है कहना कि इसमें क्या कौन सर्वाइव करेगा. दिस इज अ वेरी यूनिक सर्कमस्टांस. मगर ये कि obviously it will be a hard thing to say कि over 50% से ज़्यादा survive करें. Okay. Dr. Saab, I know you have written books, and one of the books you basically addresses this issue of startups and economy. But to the people listening to us, can you briefly tell that startups की contribution to the economy, sir, वो बढ़ेगी आपके ख्याल में pandemic के बाद या कम होगी overall? अच्छा, इसको आंसर करने से पहले एक मैं इकोनॉमिक रिव्यू देना चाहता था, लेकिन उससे भी पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि टेक्निकली तो काफी सारी yes sir. सर मैंने इकोनॉमी के लिए सोचा मैं आपसे इंशाल्लाह पूछने का अभी ही इधर ना तो मैं आंसर बाद में करूंगा. मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि इसको गैप कैसे. जी सर प्लीज 2 मिनट के लिए बात करूं. सुनने वालों के लिए एक अच्छी चीज होगी. सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे. उनके बाद एक उनके जो असिस्टेंट थे, तो उन्होंने एक लिखा था ड्रामा ट्रायंगल. उसके अंदर 3 रोल होते हैं. उसको प्ले ऑफ मसाया बोलते हैं, सेवियर्स, यानी जो एक दूसरे को सेव करेंगे. तो वो इंसान के 3 रोल हुआ करते हैं. एक रेस्क्यूर होता है, दूसरा विक्टिम होता है, और एक परसिक्यूटर होता है. रेस्क्यूर वो होता है जो कि इनिशिएट लेता है. वो कहते हैं व्हेन आई विल हेल्प व्हेन इवन इट इज नॉट नीडेड. ये वो लोग होते हैं जो आमतौर पे एंटरप्रेन्योर होते हैं, और वो कहते हैं कि कुछ भी हुआ, जैसे सैयदना अली करमल्लाहु करीम ने फरमाया कि मुमकिन और नामुमकिन तो तेरे दिमाग में है, उसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं. सो अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है. अब जो भी चीज आई, वो रेस्क्यूअर जो होगा, जो इस प्ले को लेगा, तो वो एंटरप्रेन्योर होगा. दूसरा होता है विक्टिम, जो अपने आप को मजलूम बना लेता है, और वो कहते हैं कि बड़ा जुल्म हो गया मेरे साथ, बड़ा ज्यादती हो गई, बड़ा नुकसान हो गया, मईशत ने तबाह कर दिया. इंटरनेट ऑफ थिंग्स में होता तो आज मेरा बिजनेस कहाँ पे चला जाता. मैं तो एयरलिफ्ट का मालिक था, मेरा तो बर्बादा हो गया, तो ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही. ऑयल को इस वक्त सबसे बड़ा हिट हुआ है. वो कहते हैं कि हम तबाह हो गए. तो भाई उन्होंने 300 साल खाया भी तो, अफ्रीका बर्बाद कर दिया. अरामको द बिगेस्ट अरब एम्पायर बन गई. अभी काबतुल्लाह अल्लाह ने बंद करके उनकी मईशत को कम कर दिया. तो आप ये देखें, सिर्फ तवाफ और हज से वो कितना पैसा आ रहा था, तो वो भी मईशत का कम हो गया. अब वो हज डिजिटाइजेशन पे जा नहीं सकता, तो मुझे तो लगता है कि हो सकता है ऑनलाइन हज शुरू कर दें. अच्छा, तो तीसरी चीज है कि वो परसिक्यूटर होता है, और परसिक्यूटर वो होता है वो जो ब्लेम गेम खेलता है. सो ये 3 रोल जो है वो अच्छा, वो हर वक्त अपने आप को अकाउंटेबल नहीं करता. वो परसिक्यूटर जो है वो इस रोल में रहता है कि जो कुछ भी हुआ है ये मेरे इर्द गिर्द गिरदो नवाज से हो रहा है. सो हमें देखना चाहिए कि हम कौन से रोल में अपने आप को फिट कर रहे हैं. सो मेरे लिए रिकमेंडेड ये होगा कि इकोनॉमिक्स से भी निकलने के लिए रेस्क्यूअर इज द बेस्ट रोल इन द ड्रामा ट्रायंगल टू बी द मसाया. थैंक यू. ओके, थैंक यू सर. सो नाउ अच्छा, एक और क्वेश्चन था हमारे पास जो कभी आया है. बेसिकली ये है कि बहुत सारे लोग एज अ होल, साहब I'll start with you with this. सर बहुत सारे लोग एज अ होल जो हैं वो काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर द पेंडेमिक. पीपल आर मेकिंग PPE suits, people are making ventilators, whether it be home sanitizers. A lot of entrepreneurs are working in this. So basically उसके लिए हमारा 2-step question है कि जो लोग अभी इस वक्त इस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, would they be able to get their return on investments? A. B, what would happen to these briefcase setups post COVID-19? How do you see this? Can you please answer both questions, and we'll go to other panelists, please. So it's for me. मेरे लिए question yes sir. Yes sir. Yes sir. आपसे या फिर इंशाल्लाह बाकियों में ज़्यादा. चलिए. तो I will एक थ्योरी है जो कि बहुत पुरानी है मगर आजकल it's pretty common. Infinite game. साइमन सिनेक की किताब है इस मौजू के ऊपर भी, मगर you can read about it as well. तो उस थ्योरी के हिसाब से ये है कि कोई भी गेम ना कोई स्टार्ट होता है ना कोई एंड होता है. It's an ongoing thing, और आप अपने आप को हर वक्त उसके हिसाब से मॉडिफाई करते रहते हैं.
अगर हम एग्जांपल ये लें कि गूगल की छोटी सी एक एग्जांपल मैं पेश करता हूँ कि गूगल केम आउट ऑफ .com बस्ट, जो कि पहला क्राइसिस आया था आईटी इंडस्ट्री का सन 2000 में। दे ऑलमोस्ट वेंट आउट ऑफ बिजनेस, मगर इन्होंने अपने आप को पिवट करके किसी तरह करके सर्वाइव करा लिया। 2008 में सेकेंड मेल्टडाउन आया था और उसमें इन्होंने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह लॉन्च किए। वाइल पूरी दुनिया डूब रही थी, इन्होंने फ़ोन लॉन्च किया। आज 65% ऑफ द फोन्स वर्ल्ड वाइड, चाहे चाइना में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनका एंड्रॉयड है पीछे। सो ये वो कंपनियां होती हैं जो कि क्राइसिस के लिए सिर्फ काम नहीं करती हैं और क्राइसिस के बाद वो आउट ऑफ बिजनेस चली जाए। ये वो कंपनियां होती हैं, सक्सेसफुल कंपनियां वो होती हैं जो कि क्राइसिस में ना सिर्फ सर्वाइव करें मगर उससे निकल के फिर उसको पिवट करें या उसी बिजनेस को एक बड़ी मार्केट के लिए लेके चलें। देखें, हेल्थ केयर एक ऐसी नीड है जो कि ज़िंदगी में हर वक्त रिक्वायर्ड होगी, चाहे क्राइसिस हो या ना हो। अगर आज आप वेंटिलेटर बना रहे हैं, सो वेंटिलेटर की हमेशा एक डिमांड होगी। अब आपने वो समझना है कि वो वेंटिलेटर कहाँ इस्तेमाल होगा, किस तरह इस्तेमाल होगा। अगर आप फेस मास्क बना रहे हैं तो उसकी भी एक डिमांड होगी, पाकिस्तान में भी होगी, इंटरनेशनली भी होगी। सो ठीक है, कोविड जितनी नहीं होगी मगर फिर भी होगी। तो हमने वो देखना है कि उसके अंदर हमने किस तरह उस डिमांड को पूरा कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठ के। सो यू हैव टू प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम। तो आपने देखना है 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या चीज़ डिमांड में होगी, किस किस्म के वेंटिलेटर चाहिए होंगे। तो हम अपनी सॉल्यूशंस को अभी से उस हिसाब से मॉडिफाई करना शुरू कर दें। तो एंड्रॉयड फ़ोन जैसे गूगल ने 2008 में नहीं सोचा और अचानक लॉन्च कर दिया। ये 2003 या 4 से उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, बट दैट वाज द टाइम दे एक्चुअली लॉन्च द फोन राइट आफ्टर आईफोन। आईफोन लॉन्च होता या ना होता, एंड्रॉयड फ़ोन ने लॉन्च होना था। लॉन्च होना, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, द सेम क्वेश्चन विद यू सर कि अभी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं विद स्पेसिफिक रिलेटेड टू पेंडेमिक। वुड दे बी एबल टू गेट देयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स और व्हाट वुड हैपन टू देम आफ्टर द पेंडेमिक सर? अच्छा, इसके लिए मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट 3 आई मीन मेंसबर्ग ने बहुत अरसा पहले भी कहा था कि 4 तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। उनमें डिफरेंशिएशन होता है, लो कॉस्ट लीडरशिप होता है और तीसरा एनालाइजर होता है। अच्छा, ये बड़े बड़े जब इनिशिएशंस होती हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, KFC आ जाता है, मैकडॉनल्ड आ जाता है, IT में आ जाते हैं, एप्पल आ जाता है, डेल आ जाते हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं। ये वो होती हैं जो कि एक नई अप्रोच के साथ, एक इनोवेशन अप्रोच के साथ अगली सदी की बात करती हैं। और एक चौथी इसने जो बात की थी मेंसबर्ग ने, उसमें एक एनालाइजर और रिएक्टर की बात की थी। अच्छा, रिएक्टर भी बिजनेसमैन ही होते हैं और वो आम तौर पे जो है वो तकलीफ से फायदा उठाते हैं, यानी दुख को फायदे में लेकर आते हैं। आपके रियल एस्टेट के अंदर आमतौर पे ये इतने सारे लोग होते हैं कि जब वो देखते हैं कि किसी के बच्चे को डिग्री की जरूरत होती है तो वो उसके पास खुद पहुंच जाते हैं, कहते हैं अच्छा तुम ऐसे करो, तुम्हारे वैसे तो प्लॉट तुम्हारा 50 लाख का है, लेकिन अब तुम्हें डिग्री बच्चे को करानी है और फौरी भेजना है तो 25 लाख में बेच दो। तो उसकी मजबूरी होती है, वो बेच देता है। इसको कहते हैं कि हिट द पॉइंट, हिट द बुल। इस टाइम पर जब डेंगू आता है तो उस वक्त आपके जो लोशंस है और नेट वाले हैं वो कितने बिजनेसेस शुरू हो जाते हैं। फिर जब सर्दी आती है तो उसमें फौरी तौर पे आपका माल आना शुरू हो जाता है और ओवरकोट्स, जैकेट्स, लंडा, ये सारा शुरू हो जाता है। इसी तरीके से इस वक्त आपके पास ये जनरेटर वाला बिजनेस शुरू हुआ तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में वो फ्लरिश ही कर रहे हैं। उनको लगता था 1 साल के लिए जनरेटर काम करेंगे और हमारी ये जो टेम्पररी जो रेंटल इलेक्ट्रिसिटी ये काम करेगी तो वो बिजनेस हो, लेकिन वो तो कंटिन्यू हो गया। अभी तो पाकिस्तान ने सोचा ही नहीं है एनर्जी के ऊपर, तो चुनाचे वो लोग बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं और जनरेटर वालों की चांदी है। अभी इसी तरीके से अगर पाकिस्तान ने इसके ऊपर नहीं किया तो एक्चुअली इस बिजनेस को रिएक्टर्स कहते हैं। तो ये रिएक्टर है, इसमें भी रिएक्ट जो कर रहे हैं वो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है और फौरी तौर पे उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको आ जाएगा। मतलब जितने लोग सैनिटाइजर के बिजनेस में आ रहे हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे अभी मास्टर टेक्सटाइल वाले जो थे शहजाद अकबर साहब, वो बात कर रहे थे कि अभी मैं पूरा का पूरा प्लांट लगा रहा हूँ, तो मैंने उस पर कहा कि एक लिमिटेड प्लांट लेकर आए, लेकिन सैनिटाइजर जो है वो टॉप क्वालिटी में लेकर आए, जो कंटिन्यू उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाएं कि अगले 5 साल तक आप जो है वो बेस्ट क्वालिटी को देंगे। क्योंकि अभी तो वो भी सैनिटाइजर ले लेंगे जो क्वालिटी का नहीं है, हाई अल्कोहल होगा या नहीं होगा, पानी डालेंगे, साइकोलॉजिकली आपको लग रहा है कि आपने सैनिटाइजर लगा लिया। सो इस वक्त जो बिजनेसेस होंगे उनको आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, लेकिन यस, शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव होंगे, शॉर्ट टर्म फायदा होगा। और रिएक्टर्स जो हैं,
अगर उन्होंने स्ट्रेटेजिक लिया तो रिएक्टर से कन्वर्ट करके उसको लो कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन में डालकर एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरफ भी जाया जा सकता है. So this is my answer to the question. Thank you, sir. Thank you so much. Salman साहब, the same question again कि अभी जो लोग काम कर रहे हैं पेंडेमिक पे और वो exactly पेंडेमिक के लिए ही काम कर रहे हैं और उसमें और लोगों को मजीद काम करना चाहिए, and what would happen to these businesses once inshallah the quarantine, the pandemic is over? देखिए 3 तरह के बिजनेस ऐसे हैं जो हमेशा चलते रहेंगे. हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी और फूड होगी. इनकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है. So if you believe in quality, quantity and right pricing, तो ये 3 बिजनेसेस के अंदर there is no way, चाहे वो डिजिटल स्पेस में हो या ब्रिक एंड मॉर्टर में हो, you can't go down. ये तो हम हिस्टोरिकली ये देखते आ रहे हैं. दूसरी बात ये है कि anybody if you are looking at dropping down your existing business and looking at creating a new wing, I don't think so, because आप अकेले नहीं हैं और भी बहुत सारे लोग इसी चीज में काम कर रहे हैं. So इस existing चीज से profit taking करना, that's not going to go a long way. हाँ, अगर आपका business in any way is associated or closely resembles जहाँ पे आपकी assets या आपकी mileage in terms of having the right customers can be utilized, वो जबरदस्त है. डेस्कॉन ने अभी लॉन्च किया, जो डॉक्टर साहब ने बातें की, वो तीनों चीजें एक ही में फिट होती हैं. डेस्कॉन ने अपना कमर्शियल सैनिटाइजर जो है वो लॉन्च कर दिया. 30 लीटर की बॉटल आपको 3600 में मिल रही है. नाउ दे हैव अचीव्ड they did strike 3 things. One, quantity, quality because of their name, and the pricing also. So 120 रुपए लीटर के अंदर आपको अगर आप खुद भी घर में बनाने जाएं तो आपको 250-300 रुपए लीटर से कम की कॉस्ट नहीं पड़ती. So उन्होंने एक ही गो के अंदर तीनों से फायदा उठा लिया. Now when you talk about the startups, अगर आप डिजिटल स्पेस में हैं और आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, जो वन वे और अनदर हेल्थ को, एजुकेशन को, फूड को, जो फूड के अंदर सप्लाई वगैरह है, या आप फिनटेक को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज गोना गो अ लॉन्ग वे. जो डॉक्टर साहब ने और आतिफ ने बात की उसको मैं एक स्टेप और ऐड कर देता हूँ. देन अगेन यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट टू कीप ऑन लुकिंग कि आप अपनी इन्फिनिट गेम को कैसे प्ले करते हैं. वो दैट इज बेसिकली कि अभी तो आप प्रॉफिट टेकिंग दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको वन ट्रैक नहीं सोचना, आपको साथ साथ ये सोचना है कि व्हाट इफ दिस विल एंड, माय रेवेन्यू स्ट्रीम विल ड्राई, and how can I save my investment from growing it beyond. पूरी दुनिया में तो डिमांड खत्म नहीं हो जाएगी. So you constantly have to look at how would I reduce my price and how would I look at exportability या other usability. So it's all the mindset. Being an entrepreneur, हमेशा मैं ये कहता हूँ, is a constant hustle and a mindset. Every day you pick up a big challenge. And your dreams and goals should be big enough. They should keep on scaring you. You should get the nightmare. Then you can declare that you are an entrepreneur and you are on the right track. Because this mindset would keep you on the track. और आप long term भी सोचेंगे, short term भी सोचेंगे, और in between आप mid term की भी strategy बनाते रहेंगे. सही. अच्छा. So a big question basically, as you guys are all three related with startups and economy, and the theory of economy basically states that after every recession there is a boom, and with the boom you actually sow the seeds for the next recession. That's a different story altogether. So what do you starting with Dr. Saab, you a lot of entrepreneurs that I talk to via Plan9 etc, they all of it are under the mindset कि ठीक है अभी हालात खराब हैं, अभी चीजें बुरी हैं, बट वंस इट इज गोइंग टू ओपन वो ऐसा बूम आएगा जो कि हमारी बाकी जो जिन लोगों ने अभी इन दिनों में भी चीजें नहीं परचेज की, शॉपिंग नहीं की, हमारी चीजें नहीं बाय आउट की, वो भी करेंगे. तो सर, व्हाट डू यू थिंक, इज देयर अ बूम एक्सपेक्टेड आफ्टर द पेंडेमिक और आफ्टर द क्वारंटाइन, टू बी वेरी एग्जैक्ट? फॉर श्योर. आई मीन इसको मैं फौरी तौर पर आपको बता दूं कि अभी मैंने रीसेंट आर्टिकल लिखा है कि वर्ड इन रीमेकिंग. हेनरी किसिंगर का से पहले आर्टिकल था, लेकिन उसने भी यही लिखा, तो मुझे अपनी बात की जो है वो काउंटर मिल गया कि हेनरी किसिंगर अगर लिख रहा है तो मेरी बात भी कुछ हद तक दुरुस्त होगी. तो मैं कब से कह रहा हूँ कि अगली दुनिया सिर्फ डिजिटाइजेशन की है. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि चाइना के अंदर मेरा 4 साल का स्टे रहा और अभी मैं फिर मेरी डिप्लॉयमेंट उधर की ही होगी. सो उसमें भी अगर आप देखें कि वहां पर कैशलेस सोसाइटी है, वन. सेकंड, आप ये देखें कि ऑनलाइन डेवलपमेंट के साथ साथ उन्होंने
ऑलरेडी वो सब लोग चीजें जो हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग और डिजिटाइजेशन पर चली गई। अगला सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये होने क्या लगा, इसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। ये कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट है और रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है। और ये पूरी दुनिया की एक तब्दीली है। ये किसने की, कैसे की? अब ये सोचना सवाल ये है कि मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाने लगा, लेकिन आप सोच लें कि कौन रेडी था डिजिटाइजेशन के लिए, रोबोटिक वर्ल्ड के लिए कौन रेडी था? क्या अमेरिका था या चाइना था? अब इसमें आपको खुद देखना है कि वो कौन रेडी था जिसने ये बूम लेना है, और इस बूम का सारा इफेक्ट कौन लेगा। इस वक्त की जो आपकी जो मार्केट है उसके अंदर जो अमेरिकन क्रंच आया है, वो सारे के सारे स्टॉक्स कौन खरीद रहे हैं? मोस्टली चाइनीज कंपनीज खरीद रही हैं। अच्छा, वो जब चाइनीज खरीद रहे हैं तो रेडी कौन है? कैशलेस सोसाइटी के लिए वीचैट रेडी है, अलीपे रेडी है, सप्लाई चेन रेडी है, RFIDs रेडी हैं। और ये पूरा पेंडेमिक शिफ्ट है, एज आई मेंशन अर्लियर, what economic dynamic will reshape and there will be paradigm shift. Therefore there is ongoing alternation to the market and product models according to the new normal. So what I say, मैंने इसका नाम भी लिखा है न्यू नॉर्मल। तो बूम बिल्कुल आएगा, बड़ा डेफिनेट बूम आएगा। और इस क्वारंटाइन को आप हाइबरनेशन समझें और अपने आप को प्रिपरेशन समझें कि आपने अपनी चीजों को कन्वर्जेंस कैसे देनी है, और बूम बहुत आने वाला है और ये सारी चीजें उसी तरीके से कंज्यूम आएंगी। जो इसको पेसिमिस्टिकली सोच रहे हैं इस पेंडेमिक को, वो ऑब्वियसली अपनी दुकानें बंद करके जो है वो इस वक्त रो रहे होंगे, और जो नहीं रो रहे वो रेडी रहें, क्योंकि एक बहुत बड़ा बूम आना है और जितना आपका नुकसान हुआ है उसका 100% पूरा होगा। और इसको मैं न्यू नॉर्मल कहता हूँ। इसको न्यू नॉर्मल अगर आप समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टार्टअप्स जो हैं, जिन लोगों ने अभी तक बिजनेस आधे जो स्टार्टअप्स हमारा आप देख रहे हैं उनमें से आधों का खून डबल हो गया आपकी इस बात से, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आतिफ साहब, सर, व्हाट डू यू थिंक, इज देयर अ बूम एक्सपेक्टेड और इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज द लोकल मार्केट आफ्टर द क्वारंटाइन इज ओवर? व्हेनेवर दुनिया में एक क्रैश आता है उसके बाद एक सक्सेस भी आती है, एक बहुत बड़ी बूम भी आता है। तो मैं इसमें एक चीज़ जो कि जब मैं प्लान 9 और PITV में था उस ज़माने में भी जिक्र करता था, तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर एलैबोरेट करना चाहूँगा। एंड इट्स कॉल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आई डोंट नो आप फेमिलियर हैं कि नहीं जो लिसनर्स हैं, मगर ये दौर है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो थोड़ा सा एज अ बैकग्राउंड, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जब स्टीम इंजन आया था और स्टीम पावर से पहली फैक्ट्रियां बनना शुरू हुई थी और कॉटेज इंडस्ट्री को उसने ख़त्म किया था एंड मास प्रोडक्शन शुरू हुई थी। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जब इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ्त हुई थी और फिर स्टीम की जगह इलेक्ट्रिसिटी और से चीज़ें बनना शुरू हुई थी, और पहली क्या कहते हैं मास प्रोडक्शन जो कि ग्लोबल होना शुरू हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। थर्ड आया था जो कि अबाउट 99-2000 में ख़त्म हुआ है, और ये था डिजिटाइजेशन का, ऑटोमेशन का दौर और कंप्यूटराइजेशन का और रोबोटिक्स का दौर। ये पहला दौर था, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। जो अब फोर्थ में अब हम दाखिल हो रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट सिस्टम्स, इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंट सिस्टम्स, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग समथिंग फॉर द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर जो कि हम ओपन में करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा और वेयर हाउस के अंदर हाइड्रोपोनिकली कंप्यूटर कंट्रोल एग्रीकल्चर विल टेक ऑफ इन द नेक्स्ट 10 years। अगर हम बात करते हैं टैक्सियों की, तो जो 20वीं सदी में टैक्सियां थी, तो अभी आप ऊबर देख रहे हैं, मगर अगले 5 से 10 साल में ऊबर से भी नेक्स्ट लेवल पे ऑटोमेटेड टैक्सीज आ जाएंगी जिसमें इवन ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। So we are looking at systems where systems will become smart and intelligent and they will monitor themselves और अपने आप को वो खुद लेके आगे चलेंगे। So any startup that is thinking on those lines, regardless of COVID, regardless of any financial crunch or meltdown, will always succeed. तो आपने ये देखना है आप जा किस तरफ रहे हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है। अगर आप दोनों चीजें अलाइन कर लेते हैं तो देयर इज अ गुड चांस यू विल बी एट द फोरफ्रंट ऑफ इनोवेशन। You will be one of the winners. Okay, मैं इसमें 2 पॉइंट ऐड करता हूँ। देखें, पाकिस्तान में बूम इन एनी वेज आना ही आना था। उसकी वजह ये है कि हाइपोथेटिकली के अलावा, इन ऑर्डर टू सपोर्ट आतिफ एंड हसनैन्स कमेंट्स, पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर देखें तो उसके अंदर 65% तो आपकी पॉपुलेशन इज द एज 30 एंड लेस है। ये वो पॉपुलेशन है विच इज वेरी वेरी टेक सेवी।
हम इस एज में, अगर मैं अपने बच्चों को भी देखूं तो उस एज में हमें डिलीवरी का पता तक नहीं था। आज बच्चे फोन पे भी डिलीवरी नहीं करते, वो मतलब नॉर्मल पिकअप लैंडलाइन पे नहीं करते, वो दे जस्ट ऑर्डर फ्रॉम द एप्स। सो आपकी एक तो आपकी पॉपुलेशन के अंदर जो मैसेज आ रहा है वो नंबर 1। नंबर 2, आपकी उसकी जो पॉपुलेशन की लर्निंग है एंड अडेप्टेबिलिटी है 2। नंबर 3, अगर आप ये देखें कि बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारी इंडस्ट्रीज वर गेटिंग फ्यूचर रेडी। हम जिस एज में थे उस जमाने में क्रेडिट कार्ड इंटरनेट पे यूज करने का सोचना भी यही होता था, फ्रॉड हो जाएगा। अब आज आप देख लें कि इस पेंडेमिक के दौरान एवरीबडी सेज कि यार मैंने अगर अकाउंट नहीं भी बनाया हुआ, मैंने डिजिटल अगर अपना वॉलेट नहीं बनाया हुआ, बना लो, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, मुझे 100-200 बंदों के आगे लाइन में जाके नहीं लगना पड़ेगा। जहां तक बुक्स की बात कर रहे हैं तो मैं हमेशा 2-3 बुक्स जो अभी मैंने रिसेंटली खत्म की है, मैं बड़ी रिकमेंड करता हूँ कि पढ़नी चाहिए, और दिस इज द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन लर्न। आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते तो आप उनकी समरीज नेट से ढूंढ लें। एक तो पढ़े स्टार्टअप नेशन, बहुत जरूरी है। उसको आपको बताता है कि हाउ क्रिएटिविटी एक्चुअली फ्लरिश व्हेन देयर इज एवरीथिंग अगेंस्ट यू, नंबर 1। नंबर 2, आपकी बुक जो है वो है टेक टाइटन्स ऑफ चाइना। हम बात करें एक ऐसी सोसाइटी की जहां पे रेजिंग योर वॉइस वाज एन इशू। वहां पे 3 कंपनियां 70% जो है इंटरनेट की ट्रैफिक को संभालते हैं। अलीबाबा हो गया, टेंसेंट हो गया, वेलू हो गया, ये हो गया। एंड द थर्ड वन इज बेसिकली चाइना डिस्ट्रप्शन। क्यों? बिकॉज ये एक मिथ है जो हम लोग कहते हैं कि जी लो कॉस्ट की वजह से चाइना ने ग्रो कर लिया या कोई और इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इट्स अबाउट देयर क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड द हार्ड वर्क दैट हैज गॉन इनटू इट। तो अगर आप बात करें कि आना है तो पाकिस्तान में, एक तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है ऑलरेडी अवेलेबल। अब आप हमारे स्टार्टअप से मुझे गिला क्या है कि वो रिसर्च नहीं करते, और वो सारी रिसर्च की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कहाँ पड़ी है? ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान की वेबसाइट पे चले जाएं, वो आपको आपकी सिटी वाइज हाउस होल्ड का कंजम्पशन पैटर्न बता देता है। मुझे उसे देख के ये पता लग सकता है कि पाकिस्तान में हाउस होल्ड पर एनम एक बंदा कितने किलो मुर्गी का गोश्त खाता है, कितने अंडे इस्तेमाल करता है, ब्रेकफास्ट के अंदर नॉर्मल प्रेफरेंस क्या है। आप गैलप के सर्वे की वेबसाइट उठा के देख लें। द ओनली इशू आई हैव विद द स्टार्टअप्स इज दिस कि मोस्टली उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है बेस्ड ऑन द विम। हम ये समझते हैं, हम ये देखते हैं, डेटा कहाँ है भाई? You can only grow if you do the proper research and see कि कहाँ है। यही वजह मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्टार्टअप्स के लिए 9 to 5 का कॉन्सेप्ट सारी उम्र नहीं होता भाई। इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप सिर्फ 6 घंटे सोने के साइड पे निकाल दें, बाकी 18 घंटे यू शुड बी वर्किंग। डिवाइड करें अपने टाइम को, एटलीस्ट 2 hours फॉर स्टडी, 2 hours फॉर प्लानिंग, 2 hours फॉर रिफ्लेक्टिंग। 6 घंटे ये निकल गए आपके, बाकी 10 से 12 घंटे हैं भाई, काम करें, आप रिसर्च करें। और दूसरी बात ये है कि जो इंडस्ट्रीज जो 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 विजनरी होती हैं वो आज से 25 साल आगे का प्लान करती हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग एटीएम इस्तेमाल करने का नहीं सोचते थे, एटीएम से बिल नहीं पे करते थे, वो गलत एंट्री होगी किसी और का बिल पे हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? अब जो टेलकोज ने अपनी जो बैंक्स वगैरह बना दिए हैं आपके, वो अवेलेबल है आपके पास। अब हम अगर कंपेयर करें आज से 10 साल पहले भी, इवन के 5 साल पहले भी, वो मीन्स अवेलेबल नहीं थे। आपने लेगेसी चीजों को, जो रूटीन की चीजों को थी, उनको इतना आसान कर दिया हुआ है डिजिटल स्पेक्ट्रम के ऊपर कि आपकी जिंदगी बड़ी आसान होगी। अच्छा, उसका मतलब क्या है? मैं लेजी हो जाऊं? नहीं, एक्चुअली उसका पर्पस ये है कि आप लोगों को वैल्यू, क्वालिटी, टाइम और दे रहे हैं। सो आपका पर्सपेक्टिव क्या है? अपना काम बेहतर कर सकते हैं। व्हाट डू यू एग्जिस्ट फॉर? तो अगर मैकडॉनल्ड्स डिलीवरी आपके घर पे 30 मिनट या 40 मिनट के अंदर डिलीवर करता है और अपनी ऐप पे बताता है कि आपका राइडर यहाँ पहुंचा हुआ है, और चाइना के अंदर अगर राइडर आपको ये भी, डिलीवरी वाले ये भी बताते हैं कि राइडर का टेम्परेचर इतना था जो हमने लिया हुआ है, तो भाई ये छोटी छोटी इनोवेशन है जो उन्होंने करके ट्रस्ट विन किया है। सो इसके अंदर आई वुड बिलीव कि अगर उन लोगों के लिए इट्स जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, इट्स अ गोल्ड माइन ये टाइम, कि जो प्लान कर रहे हैं, जो रीवैल्यूएट कर रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं और जो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। So I think this is the time where Pakistani startups need to invest their time in. Every hour of this pandemic for an entrepreneur is an opportunity to be very consciously developing, shaping up their future. जितनी मर्जी एडवाइस करने, जितनी डॉक्टर साहब, मैं, आतिफ, आप, सरमद, आप, हमाद, आप, ये सब लोग बैठे हुए एडवाइसेस दे दें,
बट जब तक उसे एंटरप्रेन्योर्स या फाउंडर्स खुद अपने अंदर इन्फ्यूज नहीं करेंगे डेली बेसिस पे, तो देयर इज नो फ्यूचर फॉर देम। एंड ऑल दोज जो बेसिकली छोटे से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड। Okay. अच्छा, If you allow, now we have. if you allow, I just wanted to add for a second. Yeah, sure, please. Please. I just wanted to second Salman साहब, because इन्होंने जो बात बताई अभी मैं उसी के ऊपर बात कर रहा था। देखें, innovation, if the startup popping up in the view of future pandemic shock, for example, Alibaba is set to invest 28 billion in the cloud computing service over the next 3 years, aimed at surged in demand for the business software in China following the coronavirus breakout. इसके अलावा जो एग्जांपल मैंने आपको दी और सलमान साहब ने जिस तरह किया रिसर्च के ऊपर, स्मेडा की 25 साल से एक ही वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 500 जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पड़ी हुई। अभी तक का हमारा 65% यानी 65% यूथ जो है वो उसको पढ़ना ही नहीं चाह रहा। अच्छा, फिजिबिलिटी और प्री फिजिबिलिटी होती क्या है? उसके बगैर आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते, या आप रिसर्च करेंगे कि आपको डिमांड एंड सप्लाई क्या है, ट्रेडिशनल इनपुट आउटपुट इकोनॉमिक मॉडल से निकलना होगा। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं है कि आपने कौन सा नया स्ट्रेटेजिक फिट बनाना है। तो इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज अभी फौरी तौर पे चीजें लेकर आ जाएंगे तो रिसर्च इज वे टू इम्पोर्टेंट, और उस रिसर्च को एप्लीकेबल करने के लिए आप बेशक 5 घंटे लगा दें, लेकिन वो रिसर्च जो है जो कि आपको टाइम देगी, जिसमें मैंने नासेंट एंटरप्रेन्योर पे अपना थीसिस लिखे थे 2, यानी 2 PhDs में मैंने 2 थीसिस लिखे थे। अब इस वक्त के दौरान जो मशरूमिंग मैंने की, मुझे उसका वो तो मेरे जो सारे पेपर्स हैं वो ज्यादा डॉलर में बिक रहे हैं, मेरे तो फायदा हो गया। तो अभी पॉइंट ये है कि जहां से बिक रहे हैं उनमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, पूरी दुनिया उसको खरीद रही है लेकिन पाकिस्तानी नहीं खरीद रहे। इसका मतलब ये है कि सलमान साहब की बात बिल्कुल, आई एग्री टू दिस, हम रिसर्च में वीक है, हमें पता ही नहीं है कि कौन से एरियाज में कहां पे रिसर्च करनी है। और इसको एक डॉक्टर साहब हमें जी मैं इसको आखिरी लाइन बोलता हूँ, एक चीज से इसमें निकालना होगा कि आप अब इस पूरी पेंडेमिक के टाइम में अपनी मैं निकालें, मैंने सब कुछ पता है, ये छोड़ देंगे तो आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत फायदा हो जाएगा। डॉक्टर साहब हमें साथ साथ लाइव क्वेश्चंस काफी सारे आ रहे हैं, वो काफी one last request कि हमारे पास we going overboard the time and we know कि सब बिजी हैं, बट स्पेशली चूंकि स्टार्ट ऑफ द डे है आतिफ के वहाँ पे कनाडा में, तो आतिफ ने भी जाना है, उन्होंने टाइम बाउंड, तो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा टाइम के अंदर विद इन मिनट एंड हाफ के अंदर अगर हम तमाम पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन को आंसर कर सके, बिकॉज वो बड़ा पेशेंटली आप तमाम के व्यूज सुनते रहे हैं और अपने सवालों के जवाब के जरूर मुंतजर होंगे। तो सरमद, इफ यू कैन मॉडरेट द टाइम and share. Sure, absolutely. Acha, now we have started receiving questions online basically. So one of the questions is, and I'll start with Adham Saab. Sir, the person is asking basically कि now as you are in business right now in the pandemic, तो आपको अपने operational costs कम करनी पड़ रही हैं। आपके ख्याल में pandemic के बाद consumer mindset इस तरह हो जाएगा कि it would go to more affordable solutions rather as compared to luxury और मतलब या ज़्यादा बहुत ज़्यादा luxurious और convenience पे जो solutions based हैं, इसका क्या ख्याल है आपका? बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से ये कोविड-19 इज एन आई ओपनर और ये एक न्यू नॉर्मल है बिजनेस करने का। इसमें कई सारे नए ट्रेंड्स क्रिएट होंगे जो कि आगे चलते रहेंगे, जिसमें से हो सकता है डिलीवरी विल बिकम अ बिग थिंग। अभी एक एरिया हर एक ने जिक्र किया, मगर एक एरिया पे कोई भी फोकस बहुत कम स्टार्टअप्स करें, वो ये कि क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ एट होम के अंदर एक्टिविटीज़, चाहे वो जिम हो, होम जिम हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे ये तो वो हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट है, बट इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप घर में कर सकते हैं जो कि लोगों को बिजी रखा जा सके। सो इन माय ओपिनियन ये जो दौर आ रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी और हमें अपने आप को उसी हिसाब से चेंज करना है, और लोग हो सकता है नए तरीके के आदी हो जाएं, स्पेशली द यंगर जनरेशन। तो हमें जब कोई सोल्यूशन बना रहे होते हैं तो हमें कभी 50 साल या 40 साल के इंसान के लिए नहीं बनाना चाहिए, हमें बनाना चाहिए 15-16 साल के अर्ली अडॉप्टर अर्ली के लिए, क्योंकि ये फौरन अडॉप्ट कर भी लेते हैं टेक्नोलॉजी को और फिर यही हैं जो बड़े होके आगे लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। सो दिस इज हाउ आई वुड से।
Okay, so there is also another very interesting question, Sir Salman. I would like you to answer this. So one of the startups has basically asked कि we all know that the pandemic is going to affect us as a whole, but ये investment point of view को भी affect करेगा, or do you see certain deviation in the product market fit or what? देखिए, एस्टिमेटेड पूरी दुनिया के अंदर 86 बिलियन प्लस शॉर्टफॉल इस दफा इन्वेस्टमेंट का देखा जा रहा है विद इन 2020। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत अच्छी रिसर्च रिपोर्ट I2I ने लिखी है, कलसूम लखानी ने। आई थिंक पीपल शुड डाउनलोड एंड सी दैट। बट वेंचर कैपिटलिस्ट का काम ही पैसा इन्वेस्ट करना होता है। अगर वो इन 2 क्वार्टर्स में नहीं आएगा तो वो अगले साल के नेक्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा। इज देयर जॉब टू इन्वेस्ट, क्योंकि मनी, डॉलर इन योर बैंक अकाउंट इज नॉट मेकिंग मोर मनी, so the money would actually come, but the venture capitalists या angel investors would also be looking at your business model, that how resilient you were and how कितना आप में tolerance थी जिसकी वजह से आपने ये time गुजारा। And I'm sure कि any business who will go through this thing in about next 2 or 3 years, obviously investors, not only those who are in the venture capital space, but also other investors will see कि अगर इन हालात में ये this business has fairly done well, तो इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। So I'll see इन्वेस्टमेंट की वैसे भी स्पेस पाकिस्तान में और खुलेगी। इस सेशन के एंड में I'll just take 2 minutes कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है इन चीजों को, वो I would like to tell we'll talk about that. Absolutely. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन आया, उन्होंने बेसिकली कहा है कि आप बताएं अगर इन्वेस्टर्स को भी कर देगा, अगर ना करेगा, इनोवेशन जो सर, जो लोग जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जो आइडियाज सोच रहे हैं, ये पेंडेमिक उनकी सोच को इफेक्ट करेगा, यानी कि वो सोचना ही अराउंड द कोविड कर देंगे, इस तरह उस पे इन्फ्लुएंस आएगा? अच्छा, कोविड को आप ये समझ लें कि जैसे न्यू नॉर्मल की बात मैंने की, मैं वो शेयर भी कर दूंगा। मैंने जो आर्टिकल लिखा उसके ऊपर पूरी किताब भी मैं लिख रहा हूँ, और उसमें मैंने कहा है कि ये एक न्यू नॉर्मल और रीमेकिंग ऑफ अ न्यू वर्ड है। आप इसमें ये समझ लें कि अगर आप कोविड को, ये एक अगला तर्जे आपका जिंदगी का नया तरीका है। आप माने या नहीं माने, आपको घर में महदूद होना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन गेम्स खेलनी पड़ेंगी, आपको ट्रेडमिल लेकर आना पड़ेगा। ये आपका वे ऑफ लाइफ बिल्कुल ऑल टुगेदर उसने अचानक से तब्दील कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग जो थी, जिसमें मैंने कहा आदमी इंसान के काबिल नहीं रहा, इसमें अगर आप इंट्यूटिवली या स्पिरिचुअली भी देखें तो 2 पॉइंट्स हैं कि हम लोग धोखाबाजी करते हैं एक दूसरे के साथ, काम सही नहीं करते, पैसा सही नहीं देते, चीजें डिलीवर सही नहीं करते। तो अल्लाह सुभान अल्लाह ने अगर कोई भी चीज तख्लीक करता है तो करता तो वही है। सो पॉइंट ये है कि इंसान के काबिल नहीं रहा। तो इंसान के जब काबिल नहीं रहा तो हार्मोनाइजेशन नहीं रही, लड़ रहे हैं, एक दूसरे की जगह को खत्म करते हैं, एक दूसरे को उठाकर फेंकना चाहते हैं। हम विन विन की सिचुएशन में नहीं आना चाहते, विन लूज में करना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट है तो एक को गिराना चाहते हैं, अपनी मार्केट उठाना चाहते हैं। तो सुभान अल्लाह ने आपको कहा है कि नई दुनिया के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप उस अगली दुनिया के लिए भी अगर आप ऐसे ही करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। इनोवेटर्स जो हैं वो नई चीजें सोचेंगे, और जो लोग पॉजिटिवली इस चीज को सोच रहे हैं उनका बिजनेस बहुत फ्लरिश करेगा। और इसके अंदर जो है वो डिजिटाइजेशन के ऊपर आए या अपनी RFIDs को डेवलप करें और अपने ऑटोमेशन को बेहतर करें। इन चीजों के ऊपर जितने भी बिजनेसेस आएंगे वो बेहतर है। और वन लास्ट थिंग, कॉटेज इंडस्ट्री, आप घर में बैठे हैं, एक कमरा चाइना की तर्ज के ऊपर 1980s के अंदर, जिस तरह उसने माओ ने एक आपको फिक्र दी, उसने कहा कॉटेज इंडस्ट्री का तस्वुर। तो पाकिस्तान में 90% कॉटेज इंडस्ट्री लगते हैं, आपका जो है वो मईशत कहाँ से ऊपर चली जाएगी। अब्दुल रज़ाक दाऊद का रीसेंट जो आपकी पॉलिसीज वो दे रहे हैं SMEs के ऊपर, ये मैंने आज से बहुत अर्सा पहले दी थी, लेकिन रिक्वेस्ट उनसे की थी कि कैपिटलाइजेशन से हट जाएं। लेकिन उस वक्त उनको ये आइडिया नहीं था कि कोविड ने आ जाना है। तो लेकिन अब जब आ गया तो वो SME की पॉलिसी मेरी ही दी हुई वो अब ला रहे हैं। तो SME की जो पॉलिसी है, स्मॉल एंटरप्राइज, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो आप चाहे बटन से लेके चाहे जूते बनाएं, जितने में एक कमरे के अंदर जितने ऑपरेशंस हो सकते हैं आप बनाना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि यू विल राइज इन द एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप्स। Okay, that's nice. Acha, Sir Atif, would you like to give any message to all the entrepreneurs that are listening to your session right now? Any advice, any tip, anything, any message you want to give, sir? अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है जो मैं पहले रिपीट भी करता था,
पहले भी व्यवस्था रह शजर से उम्मीद बहार रख। सो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये सब आते रहते हैं मसले, तो हमें इसमें से अपॉर्चुनिटी निकाल के आगे की तरफ चलना है। और बुरे वक्त नहीं आएंगे तो अच्छे वक्त कैसे आएंगे, हमें अप्रिसिएशन कैसे होगी अच्छे वक्तों की अगर बुरे वक्त से नहीं गुजरेंगे। तो इससे निकलना है, हमने आगे बढ़ना है और एक मेहनत करनी है, और जितनी मेहनत करेंगे उसी तरीके से हम। तो मैसेज यही है मेरा, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद बहार। ओके, थैंक यू सो मच। सो जो लोग तमाम लोग हमें सुन रहे हैं, बेसिकली वो यही बात है, हमने जब अपने स्टीम गेस्ट से यही बातें की हैं तमाम तर, कि अगर इफ यू आर एजाइल इनफ टू रिएक्ट इन दिस एनवायरनमेंट एंड टू बेसिकली मोल्ड योरसेल्फ इन द एनवायरनमेंट, यू हैव अ गुड फ्यूचर, एंड दिस इज अ बैड टाइम एंड इंशाल्लाह गुड टाइम वुड कम एंड वी विल सी ऑल ऑफ दिस। Saman sab, can you please tell that how the government can help people in this endeavor, and in the meanwhile also give any message or any tip to the startups that are right now the entrepreneurs that look up to you? आतिफ इससे पहले थे, बहुत सारा काम आतिफ ने PITB में शुरू किया। आई हैव गॉट अ वेरी वंडरफुल टीम। द गवर्नमेंट इज वेरी वेरी कॉन्शियस, पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। डॉक्टर अता is जो steering committee के lead हैं on knowledge economy, he's been very very conscious. I think the credit goes to federal as well as the provincial government also to recognize कि entrepreneurship is the new horizon for our country and the economy. तो एक तो ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में 9 इंक्यूबेटर्स खोलने जा रहा है। इसी के साथ साथ द फेडरल गवर्नमेंट वाज काइंड इनफ कि उन्होंने इंक्यूबेशन के ऊपर 13 इंक्यूबेटर सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, जिसमें AJK भी है, जिसमें बलूचिस्तान भी है, जिसमें KPK भी है, सिंध भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है और पंजाब भी है, वो ऐड किए हुए हैं, जहाँ पे नए इंक्यूबेटर्स खोलने जा रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाइए कि पंजाब की जो अगले 5 साल की ग्रोथ स्ट्रेटजी है, उसके अंदर नॉलेज इकोनॉमी का एक बड़ा अच्छा रोड मैप दिया हुआ है, और वो एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बनाया है। सो तमाम अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट अपने वसाइल के अंदर भी क्रिएट करके आपके करीब लेके आ रही है। बट द पॉइंट इज दिस के ये अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन भी बहुत बढ़ेगा। तो मैं पाकिस्तान में कहा करता हूँ कि हमें अब एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर्स नहीं चाहिए, हमें कॉन्शियस एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, ऐसे जो अपने आइडियाज को रिफाइन करके इंक्यूबेशन स्पेस के टाइम का सही बेनिफिट उठा सकें। सो अगर ये देखा जाए, इसके अलावा हमारा फ्रीलांसिंग का प्रोग्राम है, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू लर्न ऑल्सो। हमने उसके ऊपर देखा कि हमारा जो ई रोजगार का प्रोग्राम था, उसके अंदर वी हैव सीन द सडन स्पाइक। तो हमें डबल बल्कि इससे भी ज्यादा जो है एनरोलमेंट्स मिल रही हैं जब हम डिजिटल गए। हमारे लिए भी अपने लिए एक लर्निंग थी। को-वर्किंग स्पेसेस पंजाब में 36 को-वर्किंग स्पेसेस आ रही हैं 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहां पे एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स बैठ के काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो अभी रोल आउट हो रहे हैं और जुलाई से आपको आपके घर के करीब नजर आना शुरू हो जाएंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। डिजी स्किल्स एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो इस वक्त है आपके लिए लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, उसे यूटिलाइज करें। सो my advice to everybody would be, even including us जो जॉब पे हैं और जो अभी wanna be entrepreneurs भी हैं, have a skill। ये चीज मैंने आतिफ से भी सीखी थी, वो ये है कि he is one sort of a person who keep on equipping himself with more skills। Absolutely. मेरी रीडिंग की हैबिट मेरी जो खत्म हो गई थी, मैंने दोबारा शुरू कर ली है। So I see suddenly कि even working from home I have to put in more working hours, लेकिन मुझे साथ ही साथ ये नजर आ गया कि अगर मैं ऑर्गेनाइज हो जाऊं तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि मैं और भी सीख सकूं। सो गवर्नमेंट भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, बट उससे ज्यादा इंटरनेट के ऊपर आप जाके देखें, इतना कुछ आपके लिए अवेलेबल है। पिक वन थिंग टू लर्न पर वीक और पर मंथ, and then you will see in the next 12 months you will be more aware, more conscious, and you will have more command over your topic also. Baki, on behalf of PITB and my team, I would like to thank you, Atif and Hasnan also, and to our audience also. Thank you very much, Samad. My team was kind enough to initiate this session and have this session. Thank you very much from my side. Thank you, you guys all. Also, thank you, Adil Saab, for joining us from Canada. Thank you, Dr. Hasnan, for leaving the meeting for us, which were you in. We know about that. Thank you, Saman Saab, for taking out time. There is a message. Yes.
Obviously, sir. I was coming to you for the last. Can you please give a message or a tip to the startups that are listening, please, sir? And by the message, inshallah, we'll end the program, please. कोविड के ऊपर सिर्फ एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, एक इंग्लिश राइम के तौर पर है, वो मैं आराम से पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर हमें एक चीज को रीथिंक करना है. ये सब चीजें बेहतर हो जाएंगी. गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी तब तक इफेक्टिव नहीं होती जब तक उसको एक्सेप्ट ना किया जाए. So human knowledge makes you great. When there is a beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is a peace in the world. Now, where you get the peace in the world, the starting point is righteousness in the heart. How do you get it? Righteousness is built in you. It helps you in becoming world-class enlightenment citizen. Courage to think different, courage to invent, courage to travel or unexplored paths, courage to discover impossibles, courage to combat problem and secure for your unique qualities of youth. As a youth of my nation, I'll work with courage to achieve success in all mission. और skills के बगैर कोई चारा नहीं. Beautiful. Thank you guys for watching us. Thank you so much. Thank you, Dr. Saab, for coming. Thank you, Silvan. Thank you, Adar. Thank you, Ahmad Saab. We're going to see you, inshallah, the next session. Stay tuned. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.